الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، حدیث میں آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں وہ یوں سمجھے اس کو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی ہے۔ 4 چیزیں جس کو حاصل ہو جائیں وہ یوں سمجھے اس کو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی ہے۔ روایت کیا اس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور سید المفسرین ہیں۔ یہ ان سے روایت آ رہی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے یہ چاروں دولتیں، چاروں نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیں۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو مل جائیں سمجھو دنیا اور آخرت کی دولتیں مل گئیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، پہلی چیز، سب سے پہلی چیز، قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ شکر کرنے والا دل۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم اللہ تعالی کی نعمتوں میں اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں۔ اتنی اللہ تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو اس کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آنکھ، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ دماغ، یہ صحت، یہ ساری دولتیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالی نے۔ کھانا پینا، گھر بار وغیرہ وغیرہ نعمتیں، اللہ تعالی کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، سمجھے؟ پھر حدیثی میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ہر چیز صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہماری آنکھیں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، کان بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، پھر ہمارے جوڑ بھی ہیں، ہر انگلی میں 3 جوڑ ہیں، سمجھے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں 360 جوڑ موجود ہیں۔ یہ صبح اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے میرا ہر جوڑ، جسم کا ہر حصہ صحیح کام کر رہا ہے، اس پر اس کو صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ صبح اٹھتے خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو جاتی، ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ ہمارے جامعہ شفیہ کے استاد ہیں مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، بالکل صحیح، عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے گئے، صبح اٹھے جسم حرکت ہی نہیں کر رہا۔ ابھی بھی کتنے طلباء جاتے ہیں، حضرت کو اٹھاتے ہیں اور پھر لے کر آتے ہیں جب مسجد میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور کس تکلیف، مشقت اور مجاہدے کے ساتھ وہ مسجد میں آتے ہیں، سمجھے؟ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی ہوئی، کتنی بڑی دولت دی ہوئی ہے۔ صبح اٹھے، ہر چیز صحیح کام کر رہی ہے،
शुक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। न सिर्फ शुक्र बल्कि हदीस में आता है सदका भी देना चाहिए इन 360 जोड़ों की तरफ से। समझे? सदके की एक शक्ल ये है, फजर की नमाज पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद इशराक पढ़ ले, तो ये जो 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ी, ये 360 जोड़ों की तरफ से सदका भी अदा हो गया। समझे? जाहिर है, आप गौर करें, जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जिस्म का हर हिस्सा हरकत करता है। खड़े हुए हैं, रुकू में चले गए, सजदे में चले गए, बैठ गए, खड़े हो गए, समझे, घुटनों को पकड़ लिया, समझे, वगैरह वगैरह, जिस्म के आज़ा हरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये जिस्म के 360 जोड़ों की तरफ से सदका अदा हो गया अगर हमने क्या कर लिया, इशराक की नमाज पढ़ ली। भाई इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, ये सदका अदा हो जाएगा। समझे? हकीकत बात ये है, अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास या किसी के पास कुछ भी ना होता, खाने के लिए ना होता, पीने के लिए ना होता, वगैरह वगैरह मसाइल होते, लेकिन जिस्म बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता, कितनी बड़ी दौलत थी, इस पर भी शुक्र अदा करना बनता है कि शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें सही सालिम जिस्म दे दिया। भाई हमारे वो भी तो लोग हैं जो फालिज में मुब्तला हैं, जो हिल भी नहीं सकते, जो चल भी नहीं सकते, अपना सारा माल लगा दें, सेहत वाली दौलत उनको नहीं मिल सकती। अभी परसों की बात है, ये एक साथी मुझे बता रहे थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रोग्राम हुआ, कल ही मुझे बता रहे, कहने लगे वहां एक खातून आई, बताने लगे अल्लाह ताला ने 3 बच्चे दिए, 1 बेटा और 2 बेटियां। बच्चा बिल्कुल सही, चलने वाला, फिरने वाला, भागने वाला, बच्चियां बिल्कुल सही। क्या हुआ, उसको बीमारी हुई और वो गिर गया, उसका जिस्म हरकत करना छूट गया, उसके जिस्म ने हरकत करना ही खत्म कर दी। मैंने क्या किया, सऊदीया में थे ये खातून, अब यहाँ आ गई, लेकिन मैंने दुनिया का कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, मैं तो पागल हो गई, मेरे होश उड़ गए, बच्चा सही था, बच्चा हरकत ही नहीं कर रहा। आखिर अमेरिका के एक अस्पताल में रिपोर्ट जाती है और वो ये बतलाते हैं इसको वो बीमारी है जो 10 लाख लोगों में से एक बंदे को होती है। आज 15 साल उस बच्चे की उम्र है, बच्चा हरकत नहीं कर सकता, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा आ गया, फिर बच्ची थोड़ी बड़ी होती है, बच्ची भी वैसे ही हो गई, बच्ची भी वैसे ही अपाहज हो गई, कहने लगी मैं बीच में कोरोना हो गया, खामिन से वैसे तलाक हो गई, कोई देखभाल करने वाला नहीं। मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती थी, अल्लाह मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को पहले उठाना, मुझे बाद में उठाना, भी अगर मैं मर गई मेरे बच्चों को कौन देखेगा। वो तो है ही स्पेशल केस। देखो खुदा की कसम, कैसी कैसी परेशानियां, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी सेहत नहीं मिल रही। 15 साल 16 साल उनको पेशाब कराना, कज़ाए हाजत से फारिग वगैरह कराना, जागना, उठना, बैठना, खिलाना, कितनी बड़ी तकलीफ और मशक्कत आ गई। हम उठते हैं, हम देखते हैं जिस्म का हर हिस्सा सही सही काम कर रहा है, कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी दौलत है। शुक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अल्लाह ने क्या फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ल्बुन शाकिरुन, शुक्र करने वाला दिल। ये नहीं फरमाया शुक्र करने वाली जुबान, इशारा कर दिया जुबान से तो ऊपर ऊपर से भी तारीफ हो सकती है, दिखलावे वाली,
तारीफ और शुक्र दिल से होना चाहिए, दिखलावे वाला शुक्र नहीं होना चाहिए। दिल से शुक्र करे, अल्लाह जी तेरा शुक्र, तूने कितनी बड़ी दौलतें हमें अता कर दी हैं। फिर एक और रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई शख्स उठता है सुबह के वक्त में आमिनन, अमन की हालत में, कोई इसको खौफ नहीं है, कोई दुश्मन पीछे लगा हुआ नहीं है, कोई पुलिस पीछे लगी हुई नहीं है, कोई मुकदमा इसके ऊपर बना हुआ नहीं है, अमन की हालत के अंदर उठता है। और फिर कोई तकलीफ और बीमारी भी नहीं है। दूसरी सूरत ये, दूसरी नेमत ये कि कोई तकलीफ और बीमारी भी नहीं है। फिर तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो ये है कि एक दिन का खाना भी इसके पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्ची और पक्की बात किसकी हो सकती है। आप फरमाते हैं, ये यूं समझे सारी दुनिया सिमट कर मेरे पास आ गई है। भाई अमन की हालत में उठ रहा है, बीमारी भी कोई नहीं है, एक दिन की दोपहर का खाना भी मौजूद है, रात का खाना भी मेरे पास मौजूद है। भाई हर तरफ से सुकून ही सुकून है, गोया सारी की सारी दुनिया सिमट कर इसके पास आ गई। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तो फिर अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है, तो फिर शुक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली नेमत तो ये है कि दिल अल्लाह ताला ऐसा अता फरमा दे जो शुक्र करता रहे हर हालत में। पहनने के लिए कुछ नहीं, जूता भी पहनने के लिए ना हो तब भी शुक्र, भाई अल्लाह ने पाँव तो दिया हुआ है, अल्लाह ने सेहत तो दी हुई है, ये क्या कम बड़ी दौलत है। हर हाल में शुक्र करने वाला हो। अब आप देखें, जो हाय हाय करते हैं, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गई, हाय मेरे पास कोई, हाय मैं डूब गया, हाय ये हो गया वो हो गया, उधर इशारा था। हाय हाय ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी दौलतें तुम्हें दी हुई हैं, एक दिन का खाना भी मौजूद है और सेहत मौजूद है, अमन मौजूद है। समझो सारी दुनिया की भलाइयां तुम्हारे पास मौजूद है। अल्लाह का शुक्र करो, ना शुक्री वाला मामला ना करो। समझे, मैंने आयत पढ़ी ना, शुक्र करोगे तो और नेमतें दूंगा, ना शुक्री करोगे तो फिर याद रखना मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है। ये अल्लाह ताला ने, तो एक चीज तो ये हो गई कि शुक्र करने वाला दिल अगर अल्लाह अता फरमा दे, एक ये, और दूसरा क़ल्बुन शाकिरुन व लिसानुन ज़ाकिरुन। अल्लाह शुक्र करने वाला दिल और साथ साथ जिक्र करने वाली जुबान भी अगर अता कर दे कि ये जिक्र के अंदर ही हर वक्त मशगूल है। कभी सुबहानल्लाह पढ़ रहा है, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कभी अस्तगफिरुल्लाह, कभी दुरूद पाक पढ़ रहा है, कभी क्या जिक्र कर रहा है, कभी क्या जिक्र कर रहा है, हर वक्त जिक्र कर रहा है। ऐसी जुबान अगर अल्लाह ताला अता फरमा देता है, ये वो दूसरी चीज है कि जिसको ये चार दौलतें मिल गई, उसको समझो दुनिया और आखिरत की भलाइयां मिल गई। दूसरी चीज क्या हो गई, जिक्र करने वाली जुबान। दूसरी रिवायत में ला यज़ालु लिसान, तेरी जुबान हर वक्त जिक्र, अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। ला यज़ालु लिसानुका रत्बन, हर वक्त क्या रहनी चाहिए, तर रहनी चाहिए अल्लाह ताला के जिक्र से। समझे, तो हर वक्त। अब जिक्र क्या करें, याद रखें कि जिक्र ये समझे रूहानी ग़िज़ा है। तो जैसे जिस्मानी ग़िज़ा ये नहीं होता कि बंदा एक ही खाना हर रोज खाता रहे और हर वक्त खाता रहे, कभी कोई खाना वो भी अल्लाह की दौलत नेमत, कभी दूसरा खाना वो अल्लाह, कभी तीसरा खाना, अल्लाह की नेमतें हैं। तो जिक्र भी सिर्फ एक नहीं, मुख्तलिफ किस्म के, कभी सुबहानल्लाह पढ़े, कभी अस्तगफिरुल्लाह पढ़े,
कभी दुरूद पाक पढ़े। सबसे आला जिक्र अगर कोई है तो वो नमाज है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमा रहे हैं अकीमिस्सलात लिज़िक्री, तुम नमाज को कायम करो मेरे जिक्र के लिए। नमाज जिक्र और सबसे बड़ा जिक्र। उसके बाद दूसरे नंबर का अगर कोई जिक्र है तो वो कौन सा जिक्र है? वो है तिलावत कुरान। हर नमाज के बाद एक औ पढ़ लिया जाए ना तो आसानी से दिन में पारा सवा पारा खत्म हो जाता है। 24 दिन में आपका पूरा कुरान मजीद खत्म। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट लग जाएंगे पाव पढ़ने में। दूसरे नंबर का जिक्र अगर कोई है तो वो तिलावत कुरान मजीद है। इसके अलावा आप जो पढ़ना चाह रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ना चाह रहे हैं, फिर आप मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, ये भी जिक्र, मस्जिद से निकलने की दुआ, ये भी जिक्र, बैतुल खला जाने की, बैतुल खला से बाहर आने की दुआ, ये भी जिक्र, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, ये भी जिक्र, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जिक्र, गाड़ी में सवारी में बैठ रहे हैं सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना, ये भी जिक्र। ये सारे जिक्र की शक्लें हैं। बस हर वक्त जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। एक खातून बता रही थी, जापान की रहने वाली हैं, कहने लगी मैंने 10 करोड़ दफा दुरूद पाक पढ़ ली है। कहाँ रहती हैं? जापान। 10 करोड़ मर्तबा। ये कितने अरसे में? 12 सालों में मैंने 10 करोड़ दफा ये दुरूद पाक का विर्द मैंने कर लिया। जिसको अल्लाह ताला खुदा की कसम तौफीक दे दे। अच्छा, दुरूद कौन सा पढ़ा आपने? कहने लगे दुरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। ये मुख्तसर वाला दुरूद पढ़ लिया मैंने। देखिए कितना आसान दुरूद। मैंने 10 करोड़ दफा 12 साल में। हमारे एक साथी हैं, कहने लगे मुफ्ती साहब मैं यहाँ से सफर के ऊपर रहता हूँ, कोई पिंडी जा रहा हूँ, कभी आ रहा हूँ, आप यकीन जाने कि फजूल बात मैं नहीं करता, तस्बीह मेरे हाथ में होती है, कभी 10,000 दफा, कभी 20,000, कभी 15,000, जैसे सहूलत हो सके आते जाते के अंदर ही पहला कलमा मैं पढ़ लेता हूँ। फिर मैं जिक्र ही करता रहता हूँ कि क्या जरूरत पड़ी है फजूल बात करने की, वक्त जाया करने की। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? हर वक्त तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। ये भी जिक्र है, समझे? तो दूसरी दौलत कौन सी हो गई? जिक्र। अल्लाह ताला शुक्र करने वाला दिल दे दे और जिक्र करने वाली जुबान दे दे। और तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और ऐसा अल्लाह ताला बदन अता फरमा दे, व बदनुन, कि जो सब्र करने वाला हो तकलीफों और आजमाइशों और बलाओं के वक्त। अल्लाह ताला अगर ऐसा बदन अता फरमा दे, समझे? अभी क्या होता है, थोड़ी सी कोई परेशानी शुरू होती है, हाय हाय हम शुरू कर देते हैं। अब लाइट चली गई ना, अब आप देखें वो तूफान मच जाता है। कभी हुकूमत को गालियां निकाली जा रही हैं, कभी फलां को कह रहे हैं, कभी वापडा वालों के पीछे पड़ गए हैं। भी वापडा वालों को तो पता भी नहीं होगा कि आप उनको गालियां दे रहे हैं। समझ आ रही है? नहीं, उनको तो पता भी नहीं, हुकूमत को दे रहे हैं, वो तो इसी में बैठे हुए हैं। उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि क्या मामला हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और हम क्या कर रहे हैं? बेसब्री कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। अगर यही थोड़ा सा सब्र कर लेते, सब्र कर लेते उस तकलीफ के ऊपर और आजमाइश के ऊपर, फिर अजर ही अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक, मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी अगर उसको चुभता है, वो उस पर भी अगर सब्र कर ले तो अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाता। एक और मिसाल हदीस में आती है, कोई चीज गुम हो गई, मिसाल के तौर पर आप तलाश कर रहे हैं, कभी दराज खोला, कभी अलमारी खोली, कभी क्या देखा, कभी क्या देखा, चीज नहीं मिल रही।
अचानक पता चला, ओहो मैं अपनी वेस्ट कोट भी देख लूं, वेस्ट कोट जाकर चेकी, जेब में से वो चीज मिल गई। अब ये जो 10-15 मिनट का वक्त परेशानी रही, तकलीफ रही, मेरी चाबी किधर चली गई, मेरी चीज किधर चली गई, ये जो चीज तलाश करने में तकलीफ है, आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं अल्लाह इसके ऊपर भी अजर अता फरमाते हैं, बशर्ते कि सब्र कर। तो सब्र के ऊपर अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं। और कितना अजर अता फरमाते हैं, बाकी जितनी इबादतें हैं उनके साथ ये इजाफा है कि अगर ये इबादत कर लोगे तो इतना गुना सवाब मिलेगा, नमाज इतना गुना सवाब, तबलीग इतना गुना सवाब, जिहाद इतना गुना सवाब, रोजा इतना गुना सवाब, इबादतों के ऊपर सवाब है। लेकिन सब्र की बारी आई तो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बिला हिसाब अजर अता फरमाते। ये कुरान मजीद की आयत है। इतना सवाब मिलता है, इतनी नेकियां उसके खाते में लिखी जाती हैं, इतने दर्जात बुलंद होते हैं कि हदीस में आता है आखिरत में जब अल्लाह ताला सब्र करने वालों को अजर दे रहे होंगे तो लोग उनको देख रहे होंगे, तो उस वक्त वो ये रश करेंगे और कहेंगे काश काश इस दुनिया में हमारी खालें कैंचियों के साथ काटी जाती और हम उसके ऊपर सब्र करते, आज अल्लाह हमें भी यही अजर दे रहे होते। सब्र के ऊपर जो अजर मिलता है वो बिला हिसाब अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं, गुनाहों की माफी का जरिया बन जाता है। एक और रिवायत जहन में आई, हदीस पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हदीस के अंदर ये किस्सा आता है कि एक जगह यहूदी का इंतकाल हो रहा था और एक जगह मुसलमान, उसका इंतकाल हो रहा था। यहूदी कहने लगा काश काश इस वक्त अगर मछली खाने को मिल जाए ना, मजा ही आ जाए। अब वो भी मर रहा है मरजुल मौत में, और क्या फरमाइश कर रहा है, मछली खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं, आप सल्लम फरमाते हैं फरिश्ता, और उसको हुक्म देते हैं तो ऐसा कर कि ये जो इसका तालाब है ना उसमें मछली मौजूद नहीं है, तो मछली छोड़ दे ताकि मछली पकड़ के मछली खा ले। फरिश्ता जाहिर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी तो नहीं कर सकता, उसने कर लिया ऐसा ही। फिर दूसरी जगह एक मोमिन का इंतकाल हो रहा है, एक फरमाइश मोमिन भी करता है, वो क्या कहता है, ए अल्लाह काश इस वक्त देसी घी खाने को मिल जाए ना, मजा ही आ जाए। देसी घी, वो देसी घी मांगता है, घी मांग लिया, अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं तू ऐसा कर, इसकी अलमारी में वो घी पड़ा हुआ है, तू जाके घी गिरा दे नीचे। फरिश्ता कहने लगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्ची और पक्की बात किसकी हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो फरिश्ता अर्ज करने लगा, ए अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर, जाहिर है उसका इनकार तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कोई बात समझ में नहीं आ रही। भाई यहूदी अल्लाह का बागी, अल्लाह का दुश्मन, और तालाब में मछली नहीं, और वो मछली मांग रहे हैं, आप कह रहे मछली छोड़ दो ताकि वो खा ले, उसको खुशी हो जाए। और मुसलमान दूसरी जगह मर रहा है और अलमारी में देसी घी मौजूद है, आप कह रहे हैं गिरा दो। वहां मछली नहीं है और आप कह रहे हो डाल दो, यहाँ देसी घी है, कह रहे गिरा दो। कुछ समझ नहीं आई बात। तो अल्लाह फरमाने लगे बात ये है कि यहूदी जो बागी हैं, जाहिर है ये भी तो कोई अच्छे काम दुनिया में करते हैं नहीं करते। मैं ये चाहता हूं जो इसने अच्छे काम किए हैं ना, उन सब का बदला इनको दुनिया ही में मिल जाता है, इसको भी मिल जाए। इसकी बस एक नेकी रह गई है,
جس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا۔ اور میرے سے بڑا عادل کون ہے؟ تو چلو ابھی مچھلی مانگ رہا ہے، مچھلی مل جائے گی، اس نیکی کا بدلہ بھی مل گیا، اس کا حساب دنیا میں پورا ہو گیا۔ میرے پاس آئے گا تو پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ بنے گا جی، پھر سزا ہی سزا ہے۔ دوسری طرف ہے مومن، دوسری طرف کون ہے؟ مومن۔ مومن سے اسی طرح کبھی غلطی اور گناہ بھی تو ہو جاتا ہے نا، سمجھے؟ میں نے بیماری بھیجی، بیماری پر اس نے صبر کیا، سمجھے؟ اس صبر کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے رہے، نیکیاں بھی کی، گناہ بھی جھڑتے رہے، ابھی کچھ گناہ باقی رہ گئے ہیں، سمجھے؟ اب وہ مانگ رہا ہے گھی، میں نے کہا گھی جلا دو، اس پر بھی وہ صبر کرے گا، اور صبر کی وجہ سے جو تھوڑے سے گناہ رہ گئے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب میرے پاس بالکل پاک صاف ہو کر آئے گا اور سیدھا جنت پہ چلا جائے گا، سمجھے؟ اب بظاہر جو تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، کئی دفعہ ساتھی پوچھتے ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے؟ اس کا علماء نے بڑا آسان سا ایک وہ اصول بیان کیا ہے، کہنے لگے اگر کسی شخص کے اوپر آزمائش اور تکلیف آئی ہوئی ہے اور وہ ہائے ہائے کر رہا ہے اور اللہ سے شکوے اور شکایتیں کر رہا ہے، ہائے میں ہی رہ گیا تھا، پہلے یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، میں تو جب سے دیکھا پریشانی ہی دیکھی ہے، آزمائش ہی دیکھی ہے، میرے ساتھ تو کبھی کوئی اچھا معاملہ، اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں، آپ سمجھ لو یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہو وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، پہلے سے زیادہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، آزمائش آنے کے بعد سمجھ لو یہ جو بیماری اور تکلیفیں آئی ہوئی ہیں یہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہیں اور گناہوں کی صفائی کے لیے، سیدھی سی نشانی ہے۔ یہ اب کون سی حالت ہے؟ ہمارے جامعہ میں وہ ایک ساتھی تھے، پہلے باہر سے دنیا دار تھے، کہنے لگے میں نے بڑا جوبن دیکھا مفتی صاحب، بڑا جوبن دیکھا، اب دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ، بالکل سوکھ کر تیلا ہو گئے، کالا رنگ، بڑے خوبصورت جوان تھے، جوانی میں نے دیکھا ان کو، کہتے ہر بیماری مجھے، اب فوت ہو گئے بیچارے، ہر بیماری مجھے موجود ہے، کہتے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا میں رات کو روتا رہتا ہوں، لیکن الحمدللہ روتا اللہ کے آگے ہوں، اللہ جی ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ جی صحت دے دو، اللہ جی عافیت دے دو، باقی میں خوش بہت ہوں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگے میں بڑے گناہوں والی زندگی میں تھا جی، صحت تھی، جوانی تھی، بڑے گناہوں والی زندگی، جب سے بیماری آئی ہے میری کوئی نماز نہیں چھوٹی، کبھی میری تلاوت نہیں چھوٹی، ہر وقت میں ذکر کرتا رہتا ہوں، استغفار کرتا رہتا ہوں، جو میرے سے ہو چکا اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، میں اتنا خوش ہوں کہ خدا کی قسم اللہ نے مجھے جوڑ دی ہے اپنے ساتھ، میں بہت خوش ہوں۔ اسی طریقے سے اگر میں مر جاتا آگے جا کر کیا جواب دیتا؟ یہ اللہ نے مجھے وقت دے دیا۔ اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو بھائی ہیں ہمارے اور ان کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے یہ گناہوں کی صفائی کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، سمجھے؟ تو تیسرا کیا تھا؟ جو تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا، اور چوتھی یہ کہ اس کو بیوی ایسی مل جائے جو اس اپنی جان اور اپنے خاوند کے مال میں خیانت کرنے والی نہ ہو، اپنی عزت کی پوری حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت اپنی جان کے اندر بھی خیانت کرنے والی نہ ہو، اور خاوند کے مال کو ضائع اور برباد کرنے والی بھی نہ ہو، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہو، خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، یہ چار نعمتیں جس شخص کو مل گئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شکر کرنے والا دل، قلب شاکر،
اور دوسرا کیا؟ لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے والا جسم، اور چوتھی چیز عزت اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی بیوی۔ یہ چار چیزیں جس کو مل گئیں سمجھ لو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، پہلی تین چیزیں تو وہ ہے جو ہمارے بس میں ہے، صبر کرنا چاہیے، ہمارے بس میں ہے، ذکر ہمارے بس میں ہے، سمجھے، صبر بھی بس میں ہے، شکر یہ بھی ہمارے بس، تین چیزیں تو ہمارے بس میں ہے، چوتھا ایسی بیوی مل جائے یہ ہمارے بس میں نہیں۔ اگر تو ایسی بیوی مل گئی ہوئی ہے پھر تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ملی پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہی ہو سکتا ہے نا، اللہ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ برے کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، اللہ کی مٹھی میں ہے دل، اللہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ چاروں صفات ہمارے اندر جمع فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت پہ بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دے، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔